Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to do 7th part of the chapter that we have started. Okay, till now we have completed 6 parts, and in last part we have discussed the situation of our country, right? We have understood the position between syndicates and the Indira Gandhi. We have also understood that the Congress, which was led by Indira Gandhi, that was able to get majority, or you can say that was able to get the support of the people, right? So all these things we have discussed, but the base what we have discussed, that was because of that disputes between Congress was divided into 2 parts. But from where we are getting that yes, in actually that there were disputes in Congress party, there were differences in their ideas. So if we are looking at the election of president of our country in 1967, that is indicating clearly, that is telling us clearly that there were differences between 2 groups of Congress O and Congress R, that we have discussed in last class, right? Here we will study that there was a clear difference between the ideas. And how did the election of president of 1967, how did it try to create a disturbance, or you can say difference, clearly in the Congress party? That we are going to study in today's class. Fine? Introductory part is clear. So let us have a look what is telling us the presidential election of 1967, right? So the factional rivalry between the syndicate and Indira Gandhi came in open in 1969. So this was the year जो rivalry चल रही थी, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में dispute चल रहे थे, वो बड़े openly होके आ गई. Following President Zakir Husain's death, the post of President of the India fell vacant that year. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस ईयर में हमारे प्रेसिडेंट दैट वाज जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के बाद क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट की जो कहीं ना कहीं अथॉरिटी है, पोस्ट है, दैट वाज वैकेंट. अब दैट वाज डेफिनेटली कि उसको फिल करने के लिए देयर विल बी इलेक्शंस, right? So despite Mrs. Gandhi's reservation, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and the then Speaker of the Lok Sabha, who was that N. Sanjeeva Reddy, as the official Congress candidate for the ensuing presidential elections. अब देखो क्या हुआ. अब हालांकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, है ना, बिकॉज इंदिरा गांधी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर डिसीजंस, बट इवन देन सिंडिकेट जो पीपल थे ना, कौन थे सिंडिकेट्स? जो सीनियर थे, those who were having experience in Congress party, and they were thinking that yes, they should get importance because of their experience position, right? तो अब उन्होंने क्या किया? They were able to manage that yes, N. Sanjeeva Reddy should be the official Congress candidate for presidential election, right? But फिर क्या हुआ? Because Indira Gandhi was not happy with this decision, so she will do definitely something, है ना? तो कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगी. Now what did she do? अब देखो, इंदिरा गांधी retaliated by encouraging the then vice president VV Giri to file his nomination as an independent candidate. क्योंकि देखो, एक पार्टी से तो एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा ना, है ना, क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी अगर मान ले एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेगी अपनी तरफ से फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और उस टाइम पे कांग्रेस वाज हैविंग द लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, तो कांग्रेस पार्टी से एक ही पर्सन जाएगा, और वो पर्सन ऑलरेडी सिंडिकेट्स की हेल्प से ऑलरेडी कहीं ना कहीं दैट वाज हैविंग द पोजीशन, दैट वाज फाइटिंग द इलेक्शन, दैट वाज एन संजीवा रेड्डी, राइट? बट इंदिरा गांधी, शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन. तो उन्होंने क्या किया? रिटेलिएट किया, मतलब उसको अपोज किया कहीं ना कहीं उस डिसीजन को. हालांकि वो क्लियरली अपोज तो नहीं कर सकती थी क्योंकि कांग्रेस का डिसीजन था, बट उन्होंने एनकरेज किया जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, कि वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दें. और देखो, क्योंकि कांग्रेस के वो कैंडिडेट बन नहीं सकते, तो व्हाट वाज द ऑप्शन? उन्होंने उसको ऑप्शन भी दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब उनको किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ना है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओनली, राइट? She also announced several big and popular policy measures like the nationalization of the 14 leading private banks and the abolition of the privy purse or the special privileges given to former princes. अब देखो क्या था, ऑलरेडी ये चीज हम स्टडी करते हैं ना कि बिकॉज ऑफ द यूएसएसआर इम्पैक्ट, इंडियन इकोनॉमी वाज फीलिंग लॉट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स, और यू कैन से चेंजेस, है ना, तो चीज हम स्टडी करते हैं. तो वही हुआ कि ऑलरेडी इंदिरा गांधी ने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे,
वो डिसीजन देखो जैसे कैसे लिए थे। इन 1969 हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव डिस्कस्ड इट सेवरल टाइम कि 14 बैंक्स को हम लोगों ने नेशनलाइज्ड किया था, राइट। और उसके अलावा प्रीवी पर्स को क्या किया था, अबॉलिश किया था। प्रीवी पर्स आपको आई थिंक क्लियर है, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या था प्रीवी पर्स, कि जो प्रिंसेस थे यानी रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन थे, उनके कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स जो वो एंजॉय करते आ रहे थे। तो एक तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया, और दूसरा क्या किया, जो प्रीवी पर्स चलता आ रहा था कंट्री में उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया, एक टाइप से अबोलिश कर दिया। अब उसके बाद मोरारजी देसाई वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम पे मोरारजी देसाई थे फाइनेंस मिनिस्टर भी और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी। ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीरियस डिफरेंसेस emerged between him and the prime minister resulting in देसाई leaving the government। अब देखो क्या हुआ, यहां से अगर आप देख पा रहे हो ना, तो कांग्रेस की जो पोजीशन है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती जा रही थी। क्यों, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा था कि उसके आइडियाज को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, राइट। अब देखो क्या था, क्योंकि अब वो जो इशू था, कौन सा इशू जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बैंक्स को नेशनलाइज कर देना और प्रीवी पर्स को अबॉलिश करना। इन आइडियाज पर जो मोरारजी देसाई थे, हु वाज ही, वॉइस और यू कैन से सॉरी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो उनके आइडियाज कैसे थे, डिफरेंट थे। अगर उनके आइडियाज डिफरेंट थे तो उन्होंने जब डिफरेंट इशू रखे, तो जब उनकी बातों को नहीं सुना तो उन्होंने क्या कर दिया, पार्टी को छोड़ दिया, गवर्नमेंट को छोड़ दिया, राइट। सो यहां कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस में जो वो वाला था ना, हम लोगों ने आइडियोलॉजी पढ़ी थी कांग्रेस की, जिसलिए इसको क्या बोला गया था, रेनबो ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी को इंपॉर्टेंस मिलेगा। बट यहां पे आपको सारी चीजें ऑपोजिट होती दिख रही हैं। कैसे ऑपोजिट होती दिख रही हैं, कि हर कोई अपने अपने आइडियाज को इंपॉर्टेंस दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा तो क्या हो रहा है कि लोग कहीं ना कहीं एक टाइप से फ्रस्ट्रेट होके दे आर लिविंग द पार्टीज, दे आर लिविंग द पार्टी, राइट। ये चीजें हैपन हो रही हैं। सो देखो फिर क्या हुआ, कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड अ शोडाउन व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हालांकि ये डिफरेंसेस पहले भी आ रहे थे, बट इवन देन कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, उस चीजों को मेंटेन कर लिया जा रहा था। हम लोगों ने पढ़ा था ना, नेहरू के टाइम पीरियड में तो क्या हो रहा था, सभी को इंपॉर्टेंस मिल रहा था, राइट। तो लेकिन अब क्या होना शुरू हो गया, अब इस पोजीशन की वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, क्योंकि अब वो जो लोग थे ना मैनेज नहीं कर पाए, और ये चीज हमें क्लियरली दिख रही है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मतलब अब वो नहीं चाह रहे दैट दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। अब वो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है कांग्रेस पार्टी से। द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in the favor of संजीवा रेड्डी। अब देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहां तक पहुंच गई है कि कांग्रेस का लीडर है who is fighting the election of the president, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, पार्टी विप। पार्टी विप क्या होता है कि सभी उसको फॉलो करते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को बोला था डिफेक्शन, तो जब पार्टी विप को फॉलो नहीं करते ना, तो ऐसा भी माना जाता है कि उस पर्सन ने डिफेक्शन किया है, क्योंकि उसने पार्टी के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं करी, वो भी होता है। तो ऐसे में क्या किया एस निजलिंगप्पा ने, उन्होंने इशू कर दिया एक पार्टी विप, और क्या बोला, सारे के सारे क्योंकि अगर आपको पता होगा 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसीजर, अगर आप लोगों को याद हो तो यू मस्ट बी अवेयर बाय द फैक्ट कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारी कंट्री के एमपीज, राइट, और सारे के सारे जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा ये चीज बड़े अच्छे से, राइट। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सारे के सारे जितने भी कांग्रेस के एमपी थे, क्योंकि अगर कांग्रेस मेजोरिटी में है, राइट, 1967 के इलेक्शन में हमने देखा था, ऑल दो मेजोरिटी वाज लेस इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट ईयर इलेक्शंस, है ना, लास्ट 4 इलेक्शंस यू कैन से, बट इवन देन इट वाज एबल टू मेंटेन मेजोरिटी। तो इसीलिए अब उनको क्या था कि अगर सारे के सारे मेंबर्स भी वोट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पार्टी विप इशू कर दिया और सभी को बोला, सारे के सारे एमपीज को और एमएलएज को, कि वो फेवर में वोट करेंगे संजीवा रेड्डी के, जो कांग्रेस के क्या थे, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। अब सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्विजिट स्पेशल मीटिंग एंड ऑफ द AICC। अब उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए अब देखो इन्होंने क्या किया, रिक्विजिशन जो सपोर्टर थे उन लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या किया, दैट इज व्हाई दिस फैक्शन केम टू बी नोन एज रिक्विजिशनिस्ट, बट दैट वाज रिफ्यूज्ड। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने भी बोला कि भाई ना हम एक मीटिंग बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन ना, क्या देखा था आप लोगों ने अभी, उन्होंने एक पार्टी मतलब एक टाइप से एक मीटिंग बुलाई
बुलाने की बात की, क्योंकि आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो उस टाइम के हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बनवाने के लिए इंदिरा गांधी शी वॉज हैप्पी। तो इसीलिए अब जो पर्सन इंदिरा गांधी को फेवर करेंगे, अब दिख गया ना आपको, दो पार्ट्स बन गए, है ना। एक तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया, राइट, बट दूसरा इंदिरा गांधी एक पर्सन को सपोर्ट कर रही है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि एक स्पेशल मीटिंग बुलाओ इंदिरा गांधी के सपोर्टर ने, लेकिन उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया गया। फिर क्या हुआ, आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी, द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर अ कंसाइंस वोट, दैट मीन दैट द एमपीज एंड एमएलएस फ्रॉम द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट द वे दे वांट। अब देखो यहां आप लोगों को क्या दिख रहा है कि पार्टी में इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं कि अभी क्या हुआ था, अभी आप लोगों ने पढ़ा एक पार्टी विप इशू हुआ था। पार्टी विप का मतलब कि सारे के सारे मेंबर्स उसी की फेवर में वोट डालेंगे, संजीवा रेड्डी की फेवर में वोट डालेंगे, क्योंकि वो क्या थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी से। बट यहां पे क्या हुआ क्योंकि देखो, जब उन्होंने बोला इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने कि हमें एक स्पेशल मीटिंग बुलानी है रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, बट उस चीज को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल कैंडिडेट नॉमिनेट हो चुके थे। बट फिर भी क्या हुआ, इतने ज्यादा कंफ्लिक्ट से लोगों के आइडियाज में डिफरेंसेस इतने ज्यादा आ गए थे कि अब साइलेंटली सपोर्ट चलने लगा वीवी गिरी के लिए। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें भाई, सारे के सारे जो एमपीज और एमएलएज है ना, दे आर फ्री, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर पार्टी विप को आप वायलेट करते हो तो इट कैन बी ट्रीटेड एज द डिफेक्शन। हालांकि डिफेक्शन से रिलेटेड उस टाइम पे इतने लॉ नहीं आए हैं, बट ये स्टार्टिंग से हमारी कंट्री में पॉलिसी रही है कि पार्टी विप को फेवर करना होता है। लेकिन अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप पार्टी के अकॉर्डिंग वोट डालोगे, इट्स योर चॉइस टू whom you want to cast your vote. It means you are completely free to give your votes, all the MLAs and MPs. अब फिर क्या हुआ, the election ultimately resulted in the victory of VV Giri, he the independent candidate, and the defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate. मतलब देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा इंदिरा गांधी का। सबसे पहले तो एक ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करना, दैट वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, है ना। और उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं सीक्रेटली लोगों से फेवर में वोट भी करवा लेना, और उसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल पर्सन को, ऑफिशियल कैंडिडेट को, नॉमिनेटेड कैंडिडेट को डिफीट कराना, और उसके बाद उस कैंडिडेट को इलेक्शन जितवा देना जो क्या थे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, राइट। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली हुआ भी वही, इलेक्शन रिजल्ट वाज इन द फेवर ऑफ इंदिरा गांधी एंड द सपोर्टर्स, राइट। So the defeat of the official Congress candidate formalized the split in the party. अब क्या होगा भाई, अब लोगों के आइडियाज ऑफ कोर्स डिफरेंट है ना। तो अब कुछ लोगों को के दिमाग में ये वाला जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसलिए अब क्या हो गया, अब फॉर्मलाइज्ड क्या हो गया, स्प्लिट हो गया कांग्रेस पार्टी में। अब इसका मतलब अब फॉर्मली कांग्रेस डिवाइड हो जाएगी। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे उनको क्या किया, एक्सपेल्ड कर दिया, राइट, पार्टी से। और उसके बाद फिर क्या हुआ, शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस, और इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि उनका जो ग्रुप है ना वो एक्चुअल में रियल कांग्रेस है। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर आप लोगों ने पढ़ा था ना, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप लोगों को पता होगा कि उसने, इंदिरा गांधी ने क्या क्लेम किया कि जो उनके वाली कांग्रेस है वो क्या है, एक रियल कांग्रेस है। बाय नवंबर 1969 द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड टू द कांग्रेस ओ। देखो ऑलरेडी आप ये लोग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हो, है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, वी हैव डिस्कस्ड। तो इसीलिए क्या बोला गया, जो सिंडिकेट्स थे उनको नेम क्या बोला गया कि वो है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्योंकि देखो यहां पे क्या कर दिया गया था, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाला, राइट। शी क्लेम दैट हर ग्रुप वाज द रियल कांग्रेस, उन्होंने क्या क्लेम किया कि जो उनका ग्रुप है वही एक्चुअल में रियल कांग्रेस है। कांग्रेस ग्रुप लेड बाय सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड टू एज द कांग्रेस ओ, एंड द ग्रुप लेड बाय इंदिरा गांधी केम टू बी कॉल्ड कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। अब देखो रिक्विजिशन कहां से आया, अभी आप लोगों ने ये पढ़ा, दिस टर्म है ना, रिक्विजिशन, क्योंकि उन्होंने रिक्विजिशन की थी ना एक टाइप से कि क्या बुलाओ, स्पेशल मीटिंग बुलाओ, क्योंकि इन्होंने ऐसे एक्शंस की वजह से क्या किया था, कंट्री की सिचुएशन को इन्फ्लुएंस किया था, तो ये तो क्या हो गए, रिक्विजिशनिस्ट। और जो सिंडिकेट मेंबर थे, क्योंकि वो क्या थे, कहीं ना कहीं
कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड थे स्टार्टिंग से ही, दे वर हैविंग द सिमिलर आइडियाज यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीनियरिटी। तो अब वो मेंबर्स कौन से थे? दे वर कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। याद कैसे रखोगे? इंदिरा गांधी के नेम में आर आता है ना, तो कांग्रेस आर दैट विल बी रिलेटेड टू इंदिरा गांधी, राइट? सो दीज टू पार्टीज वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस। अब फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड दैट स्प्लिट as an ideological divide between socialists and conservatives, between rich, between the pro poor and the pro rich। अब इंदिरा गांधी ने, क्योंकि अब वो किसी ना किसी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करके रखेंगी, तो उन्होंने क्या बोला, जो स्प्लिट है ना, ये क्या था? एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। हालांकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था भी, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि कुछ ऐसा सिस्टम फॉलो होना चाहिए कि सीनियर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। उन लोगों के दिमाग में भी यही था, सिंडिकेट्स के दिमाग में। के कामराज का हम लोगों ने स्टडी किया था ना, ही वॉज थिंकिंग कि कहीं ना कहीं उनको इंपॉर्टेंस मिलेगा। बट जब इंदिरा गांधी ने स्ट्रांगली होल्ड करना शुरू कर दिया सारी की सारी पोजीशंस को, देन सिंडिकेट्स वर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, राइट? तो अब कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने यही चीज एक्सप्रेस की, क्या बताया कि जो डिवीजन है कांग्रेस का, क्यों है ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस में? क्योंकि उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन दी, क्योंकि कुछ लोग क्या है जो सोशलिस्ट है और कुछ लोग हैं जो कंजर्वेटिव्स हैं, कुछ लोग प्रो पुअर है और कुछ प्रो रिच है। इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये दो ग्रुप्स हैं कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए इट्स नॉट इजी टू वर्क टुगेदर फॉर दीज पीपल, एंड दैट्स व्हाई द यू कैन से स्प्लिट इज रिक्वायर्ड। फाइन। अब देखो, जो आप लोग जिसके बारे में अभी तक डिस्कस करते आए, और देखो ये पिक्चर आपको यही दिखा रही है, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी है ना, उस टाइम पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए। ये सिंडिकेट्स हैं, कांग्रेस के ये लीडर हैं कहीं ना कहीं। अब देखो ये क्या बता रहे हैं कि ऑन दी नीज पर कौन है? निजालिंगप्पा। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और पर्सन को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था एज द कैंडिडेट, एज द नॉमिनेटेड कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बट इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? वीवी गिरी को सीक्रेटली सपोर्ट किया एंड ही वाज एबल टू विन द इलेक्शंस एज वेल। तो सिचुएशन आपको क्या दिखा रही है? आपको यही दिखा रही है कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा था एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन द कांग्रेस पार्टी। अब ये है वीवी गिरी जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बने, राइट? अब देखो क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974, कांग्रेस वर्कर एंड लेबर लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश से लेबर लीडर रहे, इंडियन हाई कमिश्नर टू सेलोन श्रीलंका, लेबर मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। मतलब बहुत अच्छी थ्योरिटी इन लोगों ने मतलब जो वीवी गिरी थे इन्होंने संभाली हुई थी। गवर्नर ऑफ यूपी, केरला, मैसूर, वाइस प्रेसिडेंट 1967 से 1969 तक, एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना ये सिचुएशन आई क्यों थी, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो क्यों रहे हैं? अभी तो आप लोगों ने रीजन पढ़ा ना, अभी आप लोगों ने रीजन पढ़ा क्योंकि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। तो इसी वजह से तो ये क्या कर रहे थे, उन्होंने जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ, और नए प्रेसिडेंट भी यही बने, तो हमारी कंट्री में देखो क्या प्रोविजन होता है, यही प्रोविजन होता है कि अगर मान लिया प्रेसिडेंट की अथॉरिटी किसी भी वजह से वैकेंट है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसीलिए क्या हुआ, जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो उस टाइम पे वीवी गिरी ने एज आ प्रेसिडेंट वर्क किया, एक्टिंग प्रेसिडेंट, राइट? उसके बाद फिर क्या हुआ, रिजाइन एंड कंटेस्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस ने तो किसी और पर्सन को बोला था, राइट? एन संजीवा रेड्डी को बोला था। बट इसीलिए अब देखो क्या था, इन्होंने, हालांकि वो कांग्रेस से थे, बट इवन देन कांग्रेस ने इनको नॉमिनेट नहीं किया, राइट? तो फिर इन्होंने क्या किया, रिजाइन किया वाइस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से, वाइस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी से, और उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। और फिर फाइनली क्या मिला इनको, सपोर्ट भी मिल गया, एंड नॉट ओनली सपोर्ट, ही वाज एबल टू विन द इलेक्शंस एज वेल, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। फाइन, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब देखो ये आपको क्या है, एस निजलिंगप्पा लेटर टू इंदिरा गांधी एक्सपेलिंग हर फ्रॉम द पार्टी। अब देखो क्या था, हिस्ट्री इज रिप्लेस विद इंस्टेंसेस ऑफ द ट्रेजेडी एंड ओवरटेक्स डेमोक्रेसी when a leader who has risen in power on the crest of a popular wave or with the support of a democratic organization becomes a victim of political narcissism and is to by criteria of unscrupulous sycophants.
मतलब उन्होंने क्या लिखा है कहीं ना कहीं कि हिस्ट्री भी हमारी इस तरीके के एग्जाम्पल से भरी पड़ी होती है कि जब कोई लीडर ना एक टाइप से कैसे ग्रोथ करता है विद द सपोर्ट। लेकिन एज आई टोल्ड यू, डेविड एप्टन ने भी बड़े क्लियरली बोला है, पावर मेक्स अ मैन करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स अ मैन करप्ट एब्सोल्युटली। वो चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे कंप्लीटली एप्लीकेबल होती हैं कि उन्होंने क्या किया, पॉपुलर वेव की वजह से वो क्या हुई थी, चूज हुई थी, है ना, क्योंकि लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया था, राइट। बट इवन देन जब उन्होंने डिसीजंस को खुद लेना शुरू कर दिया तो ये कहीं ना कहीं क्या था, ये प्रॉब्लमेटिक था। और ये एस निजालिंगप्पा ने फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, फॉर द बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उन्होंने लेटर लिखा था एक्सपेल करते हुए। एक्सपेल मतलब होता है निष्कासित कर देना, निकाल देना, जब 1967 में उन्होंने फ्रॉम द पार्टी। अब देखो इसके बाद है अबॉलिशन ऑफ द प्रिवी पर्स। अब ये प्रिवी पर्स क्या होता है, प्रिवी पर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इन चैप्टर 1 यू हैव रेड अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आपने पढ़ा था प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के बारे में, जब आप लोगों ने चैप्टर रीड किया था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम लोगों ने सारे के सारे पार्ट्स को देखा था, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ऑल दीज प्रिंसली स्टेट्स वी हैव सीन, राइट। तो अब देखो क्या है, अब इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, दिस इंटीग्रेशन वाज प्रीसीडेड बाय एन अश्योरेंस दैट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ प्रिंसली रूल द then rulers families would be allowed to retain certain private property and given a grant in heredity or government allowances measured on the basis of the extent, revenue and potential of the merging state। अब देखो प्रिंसली स्टेट्स को हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसली स्टेट्स को ना मर्ज करना दैट वाज नॉट दैट मच इजी टास्क, बहुत टफ टास्क था वो कहीं ना कहीं। इसीलिए जब हम लोगों ने उनको मर्ज करवाया, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, कुछ पे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से सिग्नेचर करवाए, कुछ में हम लोगों ने क्या किया, कहीं पर मिलिट्री भी यूज करनी पड़ी, कहीं पर रेफरेंडम हुआ। सो ऑल द मेथड्स बाय हुक एंड क्रुक हम लोगों ने सारे के सारे मेथड्स यूज कर लिए। लेकिन अब जब उन प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया जा रहा था इंडिया में, तो क्या किया जा रहा था, जैसे मान लिया हम लोगों ने इशू तो सिर्फ हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर के बारे में पढ़ा, राइट, क्योंकि उनका इशू कहीं ना कहीं ज्यादा ड्रास्टिकल था, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक टाइप से ऐसा था, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला था। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी तो हुए होंगे ना जिनको कुछ एक टाइप से ग्रीड देके पार्ट हमारी कंट्री में मर्ज किया गया होगा, क्योंकि ऐसे तो फ्री में तो आएंगे नहीं, because they were the princes and they were the kings and in the authority of the Britishers also they were enjoying some type of rights, है ना। इसीलिए हम लोगों ने उनको क्या बोला, इसलिए हम उन लोगों को बोला कि अगर वो इंटीग्रेट होंगे ना, अगर वो इंटीग्रेशन करते हैं हमारी कंट्री में, तो हम उनको क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के राइट्स देंगे, जैसे कि उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। उनको क्या किया जाएगा, कुछ गवर्नमेंट उनको अलाउंसेस देती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रिटिशर्स भी करते थे ना, कि आप क्या करो, ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क करना शुरू कर दो, हम आपको 50,000 पर ईयर हम आपको एक टाइप से पेंशन दे देंगे। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, मॉडर्न इंडिया में आप लोग पढ़ के आए हो 8th क्लास में। उसके बाद मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट, रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द इमर्जिंग स्टेट्स, और ये सारी की सारी चीजें कि उनको क्या बोला जाएगा, उनको रेवेन्यू और वो सारी चीजें, मतलब कुछ फैसिलिटीज, स्पेशल प्रिविलेजेस उन लोगों को मिले हुए थे क्योंकि वो मर्ज हुए थे इंडिया में, एंड दे हैव यू कैन से सरेंडर देयर सोवरेनिटी टू इंडियन गवर्नमेंट। इसलिए हम लोगों को उनको कुछ राइट्स देने थे, राइट। और दिस ग्रांट वाज कॉल्ड द प्रिवी पर्स, और इसी को नेम दिया गया प्रिवी पर्स। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मतलब कि व्हेन दे साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, सो दे हैड Indian government had given some type of special rights to these people. At the time of accession, there was little criticism of these privileges since integration and consolidation was the primary aim. हालांकि क्या हुआ था कि जब हमारी कंट्री में क्या हुआ, असेशन हुआ, मतलब मर्ज किया गया इन सारे के सारे पार्ट्स को, तो उसको क्रिटिसाइज भी किया। क्यों किया गया, क्योंकि कुछ को स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे। लेकिन फिर उस क्रिटिसिज्म को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइमरी टास्क था वो यही था कि हमें कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे कंसोलिडेट, मतलब कैसे उसको एक टाइप से एक सुदृढ़ बोलते हैं ना, यानी उसको कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग करना है, वो कैसे करना है, राइट। इसलिए कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, बट क्रिटिसिज्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुआ। बट फिर क्या हुआ, येट हेरिडिटरी प्रिविलेजेस वर नॉट consonant with the principles of equality and social and economic justice laid down by the Constitution of India। लेकिन फिर देखो, जैसे वो इंडिया का पार्ट बने तो वो क्या बन गई, इंडिया का एक पार्टी तो बन गई ना, राइट। मान लिया हैदराबाद इंडिया में मिल गया, तो हैदराबाद क्या बन गया, इंडिया का पार्ट है। जैसे पंजाब स्टेट है, तो हैदराबाद भी उस टाइम पे क्या बनेगा, स्टेट बनेगा। तो क्यों उस पर्टिकुलर चीज को स्पेशल राइट्स क्यों देने हैं, जब हमने बोला कि हम एक कंप्लीट इंडिया बनाएंगे, है ना।
तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम ऐसा इंडिया बना रहे हैं, दैट इज वन, देन व्हाई शुड वी गिव स्पेशल राइट्स, राइट? एंड इफ वी आर गिविंग देन इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, देयर विल बी इक्वालिटी ऑन ईच एंड एवरी बेसिस। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर यू कैन से एक पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल राइट्स दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल। सो नेहरू हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिससैटिस्फैक्शन ओवर द मैटर टाइम एंड अगेन। नेहरू ने क्या किया, इस मैटर पे बार बार वो क्या करते थे, अपने एक टाइप से डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते रहते थे। अब देखो जैसे जम्मू कश्मीर का इशू था, जम्मू कश्मीर में भी तो यही हो रहा था ना। जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल्दो नाउ इट्स अ टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, और है ना। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, आर्टिकल 370 था जो क्या स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करवा रहा था जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि हमारी कंट्री के सारे लोग वहां पे तब इंप्लीमेंट होंगे जब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको एक्सेप्ट करेगी, है ना। तो ऑल्दो इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया बट इवन देन इट वाज हैविंग सम स्पेशल राइट्स। इसीलिए क्या, ये भी तो हमारी कंट्री की इक्वालिटी के अगेंस्ट हुआ। इसलिए फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, 2019 में उस स्पेशल राइट को भी एबॉलिश करके कंप्लीट इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी, राइट। तो ये भी सिस्टम जो प्रिंसली स्टेट्स का था, ये भी क्या था, कुछ स्पेशल अथॉरिटी दे रहा था ना। अब मान लिया एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, और एक पर्टिकुलर पार्ट है जिनको कुछ ऐसी चीजें भी नहीं मिलती कि उनकी नीड्स वो फुलफिल करे। ये तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलेंगे ना। अगर प्रिंसली जो हमारी कंट्री के ऐसे पार्ट्स होंगे जहां पर प्रिंस रूल करते थे, किंग्स रूल करते थे, उन लोगों को कुछ स्पेशल डेजिग्नेशन मिल जाएगा, उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग, सो दे वर एंजॉयिंग इट, है ना। मतलब इंडिया में मर्ज होने के बाद भी उनको कुछ स्पेशल ट्रीट किया जा रहा था, स्पेशली वे में ट्रीट किया जा रहा था। तो इसीलिए क्या किया, इसीलिए नेहरू इसके बारे में अगेन एंड अगेन डिस्कंटेंट शो करते थे। फॉलोइंग द 1967 इलेक्शन, इंदिरा गांधी सपोर्टेड द डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड अबॉलिश प्रीवी पर्स, और इस डिमांड का उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी मिलेगा, मतलब पॉजिटिव वे में। उन्होंने क्या बोला कि सपोर्ट किया उस डिमांड को कि हमारी गवर्नमेंट को अबॉलिश कर देने चाहिए प्रीवी पर्स। उसके बाद मोरारजी देसाई हावेवर कॉल्ड द मूव मॉरली रॉन्ग एंड अमाउंटिंग टू अ ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। हालांकि मोरारजी देसाई ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने इसको काउंट किया किसमें, ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस, यानी हम लोगों ने उनके ट्रस्ट के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर दिया, क्योंकि किसी आपने पहले तो उनको कुछ एक टाइप से ग्रीड दे दिया, but now you are not fulfilling that particular thing, right? So the government tried to bring a constitution amendment in 1970 but it was not passed in Rajya Sabha. अब देखो ऐसे ऐसे चेंजेस जब इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं ना, इट्स नॉट इजी टू डू दैम, क्योंकि जैसे ही हमारी लोकसभा में पास हुआ ना तो राज्यसभा ने इसको स्टॉप कर लिया। It then issued an ordinance which was struck down by the Supreme Court. अब क्या हुआ, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ। ऑर्डिनेंस मतलब जो एक टाइप सा लॉ होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दिया, और विच वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी मेड दिस इनटू अ मेजर इलेक्शन इशू। हालांकि देखो क्या हुआ, अब हालांकि इसके रिगार्डिंग कुछ ऑर्डिनेंस भी आया, बट इवन देन उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, रोक लिया एक टाइप से। फिर इंदिरा गांधी को क्या लगा कि दैट हाउ कैन आई रेज दिस इशू, हाउ कैन आई गेट पॉलिटिकल एडवांटेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इशू। तो उन्होंने इसको क्या बना दिया, इलेक्शन का मेजर इशू बना दिया 1971 में, एंड गोट अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अब देखो अगर आप इनइक्वालिटी इतने लार्ज स्केल पे कहीं ना कहीं टॉलरेट कर रहे हो, है ना, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा जब आपको कोई बोलेगा ना कि इक्वालिटी ऐसे ऐसे इस वे में एस्टैब्लिश हो सकती है। अगर उनके स्पेशल राइट्स खत्म होंगे तो आप क्या फील करोगे, आप कहीं ना कहीं हैप्पी फील करोगे। तो इसीलिए जब उन्होंने इस इशू को इलेक्शन का मैटर बनाया ना, इलेक्शन को फाइट करने का, तो लोगों ने लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इंदिरा गांधी के डिसीजंस को। फॉलोइंग इट्स मैसिव विक्ट्री इन 1967 इलेक्शंस, और इसका इंपैक्ट एज आई टोल्ड यू कि इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मिला, पॉजिटिव एडवांटेज मिला कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बहुत अच्छे लार्ज स्केल पे विक्ट्री हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू रिमूव लीगल ऑब्स्टेकल फॉर अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, और फाइनली क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूव किया गया जो लीगल ऑब्स्टेकल थी प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने के रिगार्डिंग, मतलब उन ऑब्स्टेकल को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो अब फाइनली क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, नाउ ऑल वर इक्वल। प्रिंसली स्टेट्स को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे वो कहीं ना कहीं अभी सभी इक्वल थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए क्या किया, सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाने के लिए प्रीवी पर्स को रिमूव करना दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट।
सो आई होप इन टूडेज क्लास वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों ने जो स्टडी किया वो आपने स्टडी किया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसका क्या रोल हुआ, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा कांग्रेस पार्टी पे। क्लियरली वी हैव अंडरस्टूड कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की वजह से कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गई, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर, right? Along with that we have also understood that what was privy purse, why did Indira Gandhi want to abolish it, and the idea of abolition of privy purse, how did it give advantage to Indira Gandhi in the elections of 1971, right? So I hope everything till here is completely clear to all of you and you are able to understand the complete history of our country, right? Because the chapter is quite interesting. If you are understanding each and everything, you are able to understand step by step development of our country, कि हम लोग कैसे कैसे डेवलप करते आ रहे हैं। पहले जब आप चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग पढ़ रहे थे तो इनका इंटीग्रेशन पढ़ा था। अब इनके स्पेशल राइट्स को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं, आइडियल्स हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, हम उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो इन दिस मैनर वी वर, you can say we were going one step forward in achieving the goals and targets of our constitution, right? So I hope till here everything is completely clear to all of you, but if you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section, right? I think 1 or 2 videos will be there for this particular chapter, and in next video we will discuss 1971 election। देखो हम लोगों ने पढ़ा ना कि कांग्रेस को बहुत लार्ज स्केल पे मैसिव विक्ट्री मिली, राइट? सो दैट वी विल डिस्कस कि 1971 के इलेक्शंस में उसका क्या रिजल्ट मिला। अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या जो कांग्रेस है वो खत्म हो गई है, क्या कांग्रेस का डोमिनेशन ओवर? बट नाउ इट्स नॉट ओवर। वो कैसे रिस्टोर हुआ, कैसे दोबारा से कांग्रेस पावर में आएगी, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।